آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں خاندان کے ہر فیصلے کے فائنل آؤٹ پٹ میرے تایا ابو۔ آج ہم نے لے کے آنا ہے جانور قربانی کے لیے، تو اس سلسلے میں ہم نے گاڑی بک کروائی ہے F16 اور ہمارے ساتھ ارمغان صاحب ہوں گے، ذیشان ہوگا اور فرقان بھائی ہوں گے۔ تو اس سفر کا باقاعدہ کرتے ہیں آغاز۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا اور بالکل سکپ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، یہ ولاگ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے۔ آئیں بیٹھیں اور چلیں ہمارے ساتھ۔ جانور تو پہلے ہی خرید لیا گیا تھا، لیکن نماز سے فری ہو کر کپڑے وغیرہ چینج کر ہم نکل پڑے تھے سفر میں۔ آج عید کا پہلا دن ہے اور ہم نے لینے جانا ہے جانور قربانی کا، تو سفر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ میں اور فرقان بھائی ایک بائک پہ تھے، جبکہ ذیشان اور ارمغان بھائی ایک بائک پہ تھے، اور بیل کی گاڑی کا سفر بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ہم جیسے تیسے کرتے مستیاں کرتے ہوئے بیل کی گاڑی کے پیچھے چل رہے تھے۔ ارمغان صاحب نے بڑی کوشش کی ہم سے آگے نکلنے کی، لیکن کبھی وہ آگے گزر جاتے سفر کے اندر، کبھی ہم آگے گزر جاتے۔ یہ تھوڑے لمحاتی شاٹ ہیں جب ارمغان صاحب ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ ہی لمحے بعد بالکل انہوں نے سپیڈ لگائی اور وہ ہمارے سے آگے جو ہے نا وہ گزر گئے۔ ذیشان صاحب بتا رہے تھے کہ ہم آگے جو ہے نا وہ جیت چکے ہیں، آپ ہمارے سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن یہ سفر ایسے ہی چلتا رہا۔ منزل پہ پہنچے، یہ اس بندے کی دکان تھی جس سے ہم نے بیل خریدا تھا، اس کے پاس آ کے پہلے سلام دعا کی اور بات چیت چل رہی تھی، لیکن سچی بتاؤں تو یہاں ٹائم بالکل گزر نہیں رہا تھا۔ ہمیں بے حد اتاولے تھے کہ جلدی سے ہم اپنے بیل کی جانب جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ باتیں شاتیں ہوتی رہیں، بندہ ملا، پانی وغیرہ پلایا۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، تو میں نے ارمغان صاحب کو کہا کہ لائیں مجھے پانی وغیرہ پلائیں۔ اب میں نے ایک ہاتھ سے کیونکہ کیمرہ پکڑا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے ذیشان کو پانی کی بوٹل دی کہ یار پلیز مجھے اس گلاس کے اندر جو ہے نا وہ پانی ڈال دینا۔ تو ذیشان صاحب نے گلاس کو پکڑا اور پھر کہتے گلاس آپ پکڑے، پانی میں ڈالتا ہوں۔ تو ذیشان صاحب نے پانی جو ہے نا وہ گلاس کے اندر ڈالا۔ بالکل آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، تو پانی وغیرہ پی کر ہم بس انتظار کر رہے تھے کہ ہم جلدی سے بیل کی طرف چلے جائیں۔ فرقان بھائی نے بھی پانی وغیرہ پیا۔ ذیشان کو بوتل پسند ہے اور اس کو بوتل مل گئی اور اس نے گھوٹ لگا کر بوتل کو پی لیا۔ چلیں جی، پانی شانی پی لیا تھا۔ تایا ابو بیٹھ گئے تھے اس بندے کے ساتھ اور ذیشان صاحب اس گاڑی کے اندر F16 کے اندر۔ میں آیا تو فرقان بھائی کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے مجھے بٹھانے سے انکار کر دیا، تو پھر میں نے ارمغان صاحب سے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرا یہ آگے کا سفر جو ہے نا ارمغان صاحب کے ساتھ ہوا۔ ارمغان صاحب نے مجھے اپنی بائک پہ بٹھایا تو ہم اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ یہ وہ موڑ ہے، میں گاؤں کا نام ریویل نہیں کروں گا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کمنٹ کے اندر جو ہے نا میں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے کمنٹ کر دیجیے گا کہ ہاں یہ وہ فلانا گاؤں ہے۔ اچھا جی، جیسے تیسے کر کے ہم سفر کے اندر اس حویلی میں پہنچے جہاں پہ بیل ہمارا بندھا ہوا تھا۔ یہاں ہم اترے اور یقین کریں کہ اب بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی تھی جب ہمارا رابطہ اس بیل کے ساتھ جو ہے نا ہونے والا۔ تو یہ بھی ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک چاہ ہوتی ہے، یہ قربانی کے جانور کے ساتھ وہ لگاؤ، اس کا چناؤ، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیں جی، یہ ہے جی ہمارا جانور جس کا ہم نے انتخاب کیا تھا، جس کو اللہ کی رضا کے خاطر ہم نے جو ہے نا وہ قربان کرنا تھا۔ اس عید الاضحیٰ ٹرک وغیرہ لگ چکا تھا اور بیل پتہ کیا سوچ رہا تھا؟ ابے اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور کون لوگ ہیں یہ؟ اور گاڑی لے کے کہاں گھس رہے ہو؟ ابے کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابے شیرو، تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ ابے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہے کون لوگ ہیں۔ ہم اپنے ساتھ مالائیں وغیرہ لے کر گئے تھے، تو ہم نے بھائی صاحب کو کہا کہ بھائی جان اس کو جو مالا وغیرہ نا دولہے کی طرح سجا دیں، کیونکہ جانور قربانی کا سجا ہوا ہو تو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو بھائی صاحب نے ہماری ہیلپ کی، انہوں نے سارا جانور کو جو ہے نا وہ باندھا وغیرہ، یہ مالائیں وغیرہ ان کو جو ہے نا وہ پہنا دیں، اور ہمارے ساتھ جانے کے لیے بالکل جیسے دولہا تیار ہوتا ہے بارات کے لیے، اسی طرح اس جانور کو تیار کر دیا کہ وہ جائے اور ہمارے گھر کی زینت جو ہے نا وہ بنے۔ تو یہ سارے منظر آپ کو نظر آ رہے ہیں کیمرہ سکرین کے اوپر۔ میں نے کہا بھائی مجھے ذرا اس کی رسی پکڑا دے تاکہ میں ویڈیوز کا کوئی شاٹ وغیرہ لے سکوں، لیکن حقیقت بتاؤں تو یار میں ڈر ہی رہا تھا کہیں مجھے مار نہ دے، اور آگے کے کچھ لمحات کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرنا بالکل صحیح تھا، ٹھیک ہے؟ بیل بہت ہی خوبصورت تھا، اللہ کی رضا کے خاطر ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا۔ ارمغان بھائی ڈر رہے تھے بیل کو ہاتھ لگانے کے لیے، میں نے بڑی ہمت کر کے کہا بھائی آؤ میں آپ کا ہاتھ لگواتا ہوں، تو ساتھ ہی اس نے اوئے ہوئے اللہ کا شکر ہے یار بچ گئے ہم۔ تو چنگا کیتا یار، انہیں مار کے ساری عید خراب کر دینی سی، سانو ہسپتال پہنچا دینا سی۔ بیل کو لے کے جانے کا وقت آ گیا تھا، آگے کے مناظر بیل کی زبانی۔ اوے چھڈو منو، میں نہیں جانا، اوے میرا
ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਓਏ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਓਏ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓਏ ਛੱਡ ਮੈਂ ਤੇ ਇਧਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆਓ ਆਓ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਓਏ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਆਓ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ यार जिस तरह आए उस तरह दुर जाओ मैं तो नहीं। बैल साहब प्यारे होने के साथ साथ ज़िद्दी भी थे। मैं कैमरा भी कर रहा था तो अपनी निगाहें फेर रहा था, यानी वो चीख चीख कर कह रहा था मैं तोड़े नाल नहीं जाना। बड़े अब्बू ने इसको प्यार किया, मोहब्बत दिखाई, थोड़ा बताया कि नहीं यार कोई मसले वाली बात नहीं है, उधर भी तेरा ख्याल रखेंगे, चल हमारे साथ चल पड़। तो सर अभी तक उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना मोहब्बत इंसान को चेंज कर देती है, ये तो फिर भी जानवर था। ये मोहब्बत का सिलसिला कुछ ही देर जारी रहा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन नाजरीन कहानी के अंदर ट्विस्ट है। ये रही हमारे बैल की बेगम, इसकी वजह से वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। तो कहानी के अंदर नया मोड़ आया। देखें उसकी आंखों के अंदर एक नमी सी मौजूद है जो इस बात को चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे सैयां यहाँ से ना जाना। और ये उनके कुछ रिश्तेदार हैं, ये है पाइन साहब और ये पता नहीं कौन है और ये शेरू है, ठीक है जी। और बैल साहब बिल्कुल जाने के लिए तैयार, इनकी वजह से नहीं। इसके बाद जो बकाया रकम रह गई थी, कुछ एडवांस पेमेंट हमने कर दी थी और कुछ वादा था कि आपको जो है ना वो ईद के पहले दिन जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो मिल जाएगी। तो पैसे गिनने का मामला शुरू हुआ, भाईजान ने पैसे तसल्ली के साथ गिने। अब मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, रिवील नहीं कर रहा कितने पैसे थे। लो जी मैनू भी वेख लो, मैं भी लग रहा सा नाल पिछे बैल खुल रहा सी ते मैं अपनी वीडियो बना रहा सा। मैं कहा आओ जी असी अपना कोई शॉट एक अद्धा। ये भाईजान ने बैल को खोला और सफ़र की तरफ रवा दवा हुए, लेकिन और छड़ मनु ओए मैं नहीं जाना, मैं तेनू पहले ही कहा मेरी महबूबा इत्थे रहिंदी है, मैं नहीं जाना। ओए दौड़ो ओए सारे ही, ओ मैं नहीं जाना, ओए मैनू छड़ ओए, ओ किथे ला चला मनु, ओए उन्हां ने मैनू लाल कर देना, ओए कुर्बान कर देना, मैनू छड़ दे तेरी मेहरबानी है। और ये वो मनाजिर हैं जब बैल बड़ी ही ज़िद के बाद, बड़ी ही तगोदो के बाद अपनी हमारी F16 गाड़ी के अंदर सवार होने वाला था। भाई ने बड़ा ज़ोर लगाया, खाना शाना इसका थोड़ा ले लेना था, तो भाई को बोला कि हमें एक रात का खाना भी दे दें। तो ये जनाब एक रात का खाने के लिए हमारे साथ जो है ना वो इसके यानी बोरिया बिस्तर बंद के भाजी बैल नू रवाना कर रहे सन। लेकिन बैल भी बड़ा ज़िद्दी था भाई, बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर चढ़ा। अभी तो आगे के मंजर आपने देखने हैं वीडियो के अंदर, जब ये चविंडा के अंदर जाके इसने क्या किया है। तो सारे मंजर आपने देखेंगे, थोड़ी सी बातें आपको बताएंगे। व्लॉग आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ तक अगर आगे हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। बैल ऊपर चढ़ गया। देखें यही लम्हात होते हैं ईद उल अज़हा के अंदर, यही चीज़ें होती हैं जो इंसान देखना चाहता है। तो ईद उल अज़हा के व्लॉग के मामलात के अंदर हमारा पूरा फोकस बैल के ऊपर होने वाला था और बैल को हमने अपनी F16 के अंदर सवार कर लिया। सारे हम दूर खड़े होकर देख रहे थे कि यार चाड़ तेने दिता है तो लाना उन्होंने जाके किस तरह। बड़ी टेंशन तक वो दो थी। अरमुगान साहब, फरकान भाई और ज़िशान सारे ही हम इसको जो है ना वो देख रहे थे। F16 के अंदर बैल सवार हो चुका था। अब हम निकलने के लिए बिल्कुल, तो जी हमारे सफ़र का दोबारा से वापसी का सफ़र का आगाज़ यहीं से हो रहा था। पुत्र बांध ले आज ना मनु अंदर दसना पुत्र तानु चुंडे जाके देखियो मैं तुरना ही नहीं, मैं दसांगा तानु, मैं तानु क्या मेरा कार इत्थे मैनू रहन दियो, मैं तानु दसा रगड़ दे रगड़ दे रगड़ दे, मैं नहीं जाना तानु दसिया। अब यहाँ मैं सफ़र की वीडियो ज़्यादा तो नहीं बना सका, लेकिन ये वो लम्हे हैं जब हम चविंडा पहुँच चुके थे और चविंडा पहुँचने के बाद बैल को जो है ना वो नीचे उतारना था और इसको अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जहाँ हमने इसको बांधना है हवेली के अंदर, वहाँ लेके जाना था। तो बैल भाई अंदर बड़े ही गुस्से में लग रहे थे। यहाँ पे मैं क्या चलो कोई नहीं, बैल दे नाल गुस्से वाले बैल दे नाल कोई दो तीन मुँह रख के मुँह वहा के कोई वीडियो जो है ना शूट कर ली जाए। तो मैं अपने व्लॉग कंटेंट वास्ते जरा ना बैल जी नूं वेख्या। लो जी ये बैल जी नूं वेख लो, बड़ा गुस्सा कर रहा सी, कहंदा मैं तुहाडे नाल जाना जुना कोई नहीं। इस तरह ये
ਓਏ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਓਏ ਖਿੱਚ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਓਏ ਨਾ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਆ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਮੈਨੂੰ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਓ ਭਾਈ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਦਾ ਮੈਂ ਆਜਾ ਮੈਂ ਆਜਾ ਘਰੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਛੜਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਚਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਆਓ। ਅੱਲਾ ਜੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2-3 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, मैं कितने ਓਏ ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आ रही कुछ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। बैल साहब भी डरे हुए थे और हम बैल साहब से डरे थे। मैं भी धीमे धीमे कदम बढ़ाते बढ़ाते बैल की वीडियो बना रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बैल मेरे कैमरे से ही डर रहा है। अच्छा, जैसे तैसे हमने जो है ना वो बैल को गाड़ी से उतारा और उसके बाद जो है ना फुरकान भाई को कहा कि भाई अब आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, तायाबू से जो है ना वो बैल को पकड़ें और घर लेके चलें। अच्छा, हमने घर नहीं था जाना और फुरकान भाई ने बैल को पकड़ा तो बैल ने थोड़ी सी तरह ना अपनी दिखाई कि भाई मैं बैल हूँ। मैं बड़ी यार मुश्किल के साथ, मैं साफ साफ बता दूँ आपको कि बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना हम इसको घर लेके जो है ना वो पहुँचे थे। थोड़ी देर चलता था, रुक जाता था। अब यहाँ के मनाज़र ही देख लें, थोड़ी देर यहाँ पे बैल रुका है तो इसकी फैमिली के कुछ रिश्तेदार जो है ना वो यहीं पे मौजूद थे। कोई छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना, वो बैठा था इसके ऊपर पाँव रख दिया, वो उसको देख रहा है कि यार ये क्या इसने मेरे साथ हरकत की है। बड़े मायूस कुन हालात चल रहे थे, लेकिन बैल जी अपने अटके हुए थे कि वो कह रहे थे मैं कार कोई नहीं जे जाना, जो करना जे कर लो। प्यार मोहब्बत के साथ इनको जैसे तैसे करके हमने हवेली जहाँ पे बांधना था इनको वहाँ ले आए। अब मेन काम था कि इसको रस्सी के साथ यहाँ बांध दिया जाए ताकि सुबह जब कसाई आए तो फिर यही मामलात इनके जो है ना वो तय पाएँ। तो जैसे तैसे करके भाई इनको प्यार मोहब्बत करके हमने बांध तो दिया, लेकिन उसको जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो ऐसा साफ वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो बैल जो है ना उसको जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये घर का पला हुआ बैल था। इस वजह से जो है ना वो बिल्कुल उसको अपने घर की पहचान थी और वो देख रहा था कि ये मैनू कित्थे लैंदा तुसी। सारे मामला ठीक थे, लेकिन भूख शूख हमने तो अपनी खिदमत जो है ना इसके लिए करनी ही करनी थी। तो फिर फैसला किया भाई कि पानी शानी और खाद वगैरह जो भी ये पट्ठे वगैरह खाता है वो इन्हें दिते जान। हमने इसके सारे खाने का इंतज़ाम करके जो है ना वो पानी वगैरह और जो ये खाता है चारा वो सारा इसके आगे डाल डूल कर हम यहाँ से रवाना हो गए। रात का समय आया तो इसको नहलाने का टाइम आया और मुगान साहब और मैंने मिलकर जो है ना वो इसको नहलाया और ख़ूब नहलाया। कोई 1 घंटे तक हम इसको नहलाते रहे। वो बड़े मज़े के साथ, गर्मी का मौसम था, बड़े मज़े से नहाता रहा। मुझे लगता था कि अब इस वाक़े के बाद इसके मेरे साथ दोस्ती हो जाएगी, लेकिन मुझे इसने गलत नहीं करने के बाद भाजी होरां नूं लग गई प्यास ते मैं जरा ना पानी दी बाल्टी चक्की ते भाजी रस्ते दे विच चाचू लभ गए, चाचू वसीम रहीला लैब वाले, और उन्होंने मुझे थम्स अप किया कि जाओ भाई जाओ, पानी लेके आओ। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, इससे तकलीफ़ मत दो। पानी सिर्फ ज़िबा करने का नाम नहीं, ये तो मुक़द्दस अमानत की खिदमत का नाम है जो हमारे सहन में आ बंधी थी। तो मैं इसके लिए पानी तलाश क्यों ना करके लेके सभी कज़न वगैरह इसकी खिदमत में जो है ना वो आ जुड़े थे ना। अगर मैं पानी लेकर आ रहा हूँ तो कोई इसको चारा डाल रहा था, कोई इसकी सफाई कर रहा था, इसका ख्याल रख रहा था, इसको गर्मी ना लगे पंखा लगा कर दे रहे थे। इस तरह मामला चले और मैं पानी की बाल्टी बढ़ के ओ भाई बड़ी भारी सजे साह सीधी गल है वीडियो दे विच मैं दस नहीं रहा। एक हाथ च मोबाइल सी, दूसरे हाथ च पानी सी ते भाजी भारी सी। फिर मैं सोचा मोबाइल को करो बंद, तो बिल्कुल डोर के ऊपर जाके मैंने फिर दोबारा मोबाइल लगाया। अच्छा, इसके अंदर अब ये था कि भाई जब मैंने पानी वहाँ पे रखा तो भा होरां ने जरा ना पानी सुकून दे नाल जरा ना आए और उन्होंने जो है ना अपनी प्यास जो है ना बुझाई। तो बड़े एक ना पुरसकून सा एक लम्हा होता है कि जब आप किसी तगोदो करके जानवर के लिए पानी लेके आते हैं और वो उसने पी लिया, तो यानी ये बड़ा नहीं, मुझे ये बड़े मंज़र मुझे बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था ये। तो यह आपके सामने ही है। इसके बाद मैंने उसको चारा वगैरह डाला। वो चारा वगैरह खाने के बाद बिल्कुल इत्मीनान से वो तरोदुज हो गया। मैं कहा पानी पानी और पीना था पी लो। और फिर थोड़े लम्हे के बाद जब उसको प्यास और खाना खा लिया तो पाइन और आराम कर रहे सन। यहाँ पे हम भी थक के टूट चुके थे। हमने भी कहा चलें अब चलते हैं और जाकर सोते हैं। सुबह ये आखिरी लम्हा है, ये तकरीबन 12-1 का टाइम है जब हम इसके साथ ये वीडियो बना रहे हैं। लो जी सुबह हो गई तो पाइन और फिर गुस्सा चढ़िया सी।
पायन और ने चीज़ां तोड़ तोड़ दी हैं, दाबड़ा वगैरह जहाँ पे चारा रखने की जगह हवेली के अंदर उसने चीज़ों को दहस नहस कर दिया और उसको समझ आ गई थी। वो मैं कहना ना छुड़ियाँ ना, बचपन में बड़े कहते होते थे कि इनको पहले ही समझ आ जाती है कि हमने कुर्बान होना है। तो शायद ये वो लम्हा आ चुका था जब हमारे बैल को समझ आ गई थी कि आज इसने जो है ना वो अल्लाह की रज़ा के खातिर यहाँ कुर्बान होना है। तो जान सभी को प्यारी होती है, इस सिलसिले में बड़े गुस्से में लग रहे थे, अपने हाथ तोड़ के फेंक दिए जनाब ने, और बिल्कुल वो किसी को आगे आने नहीं थे दे रहे, ना हाथ लगाने दे रहे थे। ये कुछ सुबह के मनाजिर हैं जब हम सुबह उठ के सुते उठते भाजी आके खुली तो वेली आ पहुँचे थे, आके ये सारे मामलात को देखा दुखा, और अभी समझ लें आंखें खुली नहीं थी सही तरीके से, नींद आ रही थी, लेकिन भाई वीडियो कंटेंट भी बनाना था। बैल साहब बुरी अपनी मस्ती से मगन सन, उनका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो किसी को भी अपने करीब आने दें। ये जी मेरी गैंग हसीब साहब हैं, ये हसान बेग साहब हैं, ज़िशान है और वो दाऊद है। हम सारे बैठकर अब कुर्बानी का इंतज़ार कर रहे थे। लो जी कसाई साहब दे आन तो पहला बैल साहब बिल्कुल गुस्से च सन, किसी को कोल नहीं सनान दे रहे, कोशिश कर रहे थे कि हाथ वगैरह लगा के प्यार मोहब्बत कर लिया जाए। लें जी ये कसाई वगैरह के मनाजिर हैं। आगे वीडियो के अंदर कुछ शॉट्स में आपको मैं भी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये वायलेशन हो जाती है, वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाना है, इस वजह से मैं यहाँ मज़ीद आपको इसके फुटेजेस जो है ना वो नहीं दिखा पाऊँगा। कुछ बांधने के मनाजिर हैं, ये देखें जी बैल साहब बड़े ख़तरनाक हैं, पूरा ज़ोर लगाया उसने, और सब कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है और पूरी अपनी जान में है, और वो 2 टीथ वाला जानवर था, ठीक है 4 टीथ वाला नहीं था कि 2 टीथ वाला था। और अपना बिल्कुल मजाक तो 7 साल चलता ही रहेगा, लेकिन एक सच्ची बात बताऊं तो ये थोड़े से इमोशनल वाले लम्हात थे। जितने भी लम्हे इसके साथ गुज़रे तो एक अजीब सी अटैचमेंट इसके साथ हो गई थी। मैं हैरान होता हूँ, और वही हज़रत इस्माईल के वाक़े की याद जब हमें आती है तो हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह की रज़ा के खातिर सबसे कीमती चीज़ वो अपने बेटे को जो है ना वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आज अगर उस लम्हे में वो दुम्बा ना आता तो किस तरीके से आज हम अपने नौजवान बच्चों को जो है ना वो कुर्बान कर रहे होते। एक जानवर के जाने से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एक दर्द सा महसूस होता है, और किस तरीके से फिर औलाद का जाना जो है ना वो किस तरह से होता। तो ये सब रब की ही तरफ से जो है ना वो आजमाइश थी जिसके ऊपर वो पूरा उतरे। हर साल बैल ज़िबा कर देना तो आसान है, मगर अपने गुस्से, हसद और बुरी आदत को भी ज़िबा करना सीखें, ये भी कुर्बानी का सबक। हसान साहब छत पे इस तरह से चढ़े हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि बैल भाई को गुस्सा आया हुआ है, अगर वो खुल गए तो उन्होंने हमें नहीं छोड़ना। और ना सिर्फ हसान बल्कि ज़िशान और दाऊद भी इसी डर का शिकार थे। अब सामने के मनाज़र के अंदर बैल जी को लटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मैंने फिर बताया ना वो 2 टीथ वाला जानवर था, उसने बताया तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट के करीब जो है ना वो बैल को लगे उसको लटाने के लिए। तो भाई डर का माहौल था, मैं भी जो है ना वो साइड पे दीवार के साथ ही चस्पा हुआ था, लेकिन पाजी व्लॉग भी बनाना सी, इसलिए मैं सारे मंज़र को वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करने में मसरूफ़ था। बैल पाजी लुटान वास्ते को 2-3 बंदे जो है ना वो लगे हुए थे। अब ये मंज़र जो है ना वो हर बंदे ने अपने घर के अंदर कुर्बानी के अंदर देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक साफ़ बात बता दूं, ये लम्हा भी बड़ा मुश्किल लम्हा होता है कि आप ये इन जानवर की खसूसियात ये होती है कि ये थोड़े लम्हे के लिए घर में आते हैं, लेकिन इनसे दिल बड़ा लग जाता है, और वो लम्हा जो है ना वो बड़ा दर्द वाला होता है। और शायद मैं समझता हूँ कुर्बानी इसी का नाम है, और अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानी जो है ना वो अपनी बारगाह इलाही के अंदर मंजूर व कबूल फ़रमाए। और बैल ने पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन फिर क्या किया जा सकता था, अल्लाह की रज़ा के अंदर उसको कुर्बान भी होना था। अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को जो है ना वो कबूल व मंजूर फ़रमाए। ये कुछ लम्हात हैं जब मेरे सामने आँखों के सामने जो है ना वो बैल को जो है ना वो तकबीर फेरी जा रही थी, तो मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं पहले ही बताया ना कि यार थोड़ा लम्हा होता है जानवरों के साथ, लेकिन एक दिल लग जाता है उनसे। तो बल्कि मैं वॉइस ओवर करते वक्त भी ना अभी मेरे जहन के अंदर वो बैल जो है ना वो आ रहा है, जैसे हम उसको लेकर आए, वो इतनी खुशी, वो मंज़र, वो सारा जहन में घूम रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि कितनी बड़ी आजमाइश जो है ना वो अल्लाह ताला की जो है ना वो पूरी की हज़रत इस्माईल ने, और कैसे मतलब ये मनाजिर थे। मैं अब इसको, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। बहरहाल फिर घर वाले बैल की कुर्बानी के बाद इकट्ठे हो गए। हाफिज़ साहब ने जो है ना वो ख़त्म वगैरह पढ़ा, और ख़त्म वगैरह पढ़ने के बाद सारे लोग इकट्ठे हो कर दस्तरखान पर बैठ गए थे, ताकि जो है ना वो जो भी बैल का पहले दिन का खाना जो है ना वो बनता है,
کیونکہ روزہ وغیرہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اسی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے جو اپنا روزہ جو ہے نا وہ کھولنا تھا۔ آخر میں دعا ہوئی، اور دعا کے اندر سب کی خیر و عافیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں ہوئی، خاندان اکٹھا رہے، اور یہ کچھ مناظر ہیں جب ہم وہ پاجی روٹی شوٹی بھی کھادی، پھر ٹھیک ہے۔ ایسے میں نے پہلے بتایا تھا، 2 teeth والا جانور تھا، بڑا ہی جان میں تھا اور بڑا ہی لذیذ تھا، اور گھر والوں نے سالن بھی بڑے ہی کمال کا بنایا تھا۔ تو میری طرف سے عید الاضحیٰ تمام دوستوں کو، تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو مبارک۔ اور لو جی چیک کرو تسی بھی ساڈا ایک نوالا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر کچھ نئی انٹرسٹنگ سٹوری لے کے۔